We started with macroeconomics in the previous class, and this is the second section we are doing it. And macro variables, when we say macroeconomics, essentially we are studying the whole country. When we are studying the whole economy as a single unit, that is a macroeconomics for you. And it is different from microeconomics in many ways. अब हमने किया था the scopes of macroeconomics. When it says कि scope of macroeconomics, if it comes to write a definition of macroeconomics, so write it very simply. When the economic activities are studied at macro level or economies level, morning Aman, at country's economy level, or when the whole economy is studied as a single unit, that is known as macroeconomics, where aggregates or the variables are studied in totality. That is the only difference. Look, in micro, what we did, आपने 11th में जब किया, we used to study the demand, supply of individuals or maybe group of individuals, market demand. But here we are studying the whole economy. And what all topics do you have in your macroeconomics becomes your scope or the subject matter of economics. Theory of price, or not price, sorry, theory of employment, theory of national income, theory of money, where we study money and banking. So जो जो आपके यूनिट्स हैं और चैप्टर्स हैं वही उसका स्कोप या उसका सब्जेक्ट मैटर बन जाता है ना. तो आपको वो लर्न नहीं करना है, आपको अपना सिलेबस तो पता ही होगा. वो सिलेबस में जो यूनिट्स एंड टॉपिक्स हैं, बजट फॉर इंस्टेंस, बजट, theory of studying of budget and balance of payments, foreign exchange, these all becomes your topics or scope of macroeconomics. There is one topic given as a difference. So basically there are differences on many parameters. For instance, meaning it studies the individual economic activities and it studies the whole economy as a whole, macroeconomics. Then aggregations, he aggregates. Microeconomics deals with individual units, whereas macroeconomics studies the whole thing. Central problems, उसकी central problems are what to produce, how to produce and for whom to produce. That is how to allocate resources. But इसकी central problem macro की है determination of income and employment, जो कि हमारा second unit है. फिर instruments of study, माइक्रो में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टडीज हैं डिमांड एंड सप्लाई. मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. फिर आगे उसके कंपोनेंट्स भी हैं. अच्छा, डिटर्मिनेंट्स, प्राइस इज द डिटर्मिनेंट द सॉल्व प्रॉब्लम एट माइक्रो लेवल, बट मैक्रो लेवल में इनकम इज द डिटर्मिनेंट विच सॉल्व द प्रॉब्लम एट मैक्रो लेवल. अच्छा, ऑल्टरनेटिव नेम्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑल्टरनेटिव नेम थ्योरी ऑफ प्राइस भी है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, विच इज अवर सेकेंड यूनिट. सो these becomes the basis of माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. फिर इन्होंने एक और भी दिया है, वो भी डिफरेंस ही है. दोनों ग्रीक ओरिजिन से बने हुए हैं. एक का नाम है मिक्रोस, MIKROS, विच मीन स्मॉल, और दूसरे का नाम है माक्रोस, MAKROS, विच मीन्स लार्ज. फिर आपका हमने किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ऐसे तो मैंने आपको दो टॉपिक्स और कराए थे. एक था नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है इन इकोनॉमिक्स टर्म्स और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स में. तो मैं जस्ट रिवाइज इट. फर्स्ट, द लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, दैट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी. देन टेरिटोरियल वाटर्स, that is also part of our domestic territory. Third was ships, aircrafts, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms located anywhere in the world. If they are operated and owned by a resident, they are also part of our domestic territory. Fourth, embassies, high commissions and consulate generals located anywhere in the world. They are also part of our domestic territory. And finally, military establishments located anywhere in the world is a domestic territory. ये था एक topic. Then there was another topic, normal resident of a country. And who is a normal resident? He can be an individual or a partners or a group of individuals, you may say, an institution or an organization. But necessarily there has to two conditions to be met. First, they should be residing in the country for more than 1 year. Second, their center of interest should lie with that country.
ये था एक टॉपिक। फिर हमने वी डिड टच स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो आर द टू कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स। व्हाट, जब भी आप स्टॉक को कहीं पे मेंशन करते हो ऐसे बोलोगे ना कि स्टॉक कितना है या स्टॉक है या नहीं है, मतलब उसको क्वांटिफाई वे में एक्सप्रेस करते हैं ना, जैसे डिमांड और सप्लाई को करते थे आप। तो स्टॉक एंड फ्लो बोथ आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, बट डिफरेंस इज, देखो तीन ही लड़कियों के इनके कैमरे ऑन है, इशिता, निशा, अरमानी और प्रीति। बाकियों को बेटा नंबर में काट जाऊंगा, आप बेशक रहना, मैं नंबर काट लूंगा। दिस विल बिकम द बेसिस if this is a pandemic time and we are going through such a bad phase or patch, तो मैं इसके लिए अकाउंटेबल ठहराने के लिए this is the only tool I have got. Those who show up will definitely be benefited, I promise you. And those who are just beating around the bush, आपको you'll need to pay बेटा, in one way or another you'll pay. ये it is not a joke, और आपके केस में तो बिल्कुल ही नहीं है। 12th के केस में आपको लग रहा है ये फन टाइम तो आप कर लो, इट इज ऑल योर परसेप्शन, बट इट इज नॉट। हम जो पढ़ रहे हैं ये झूठ मूठ की पढ़ाई नहीं हो रही है, वी आर डूइंग इट इन रियल टाइम एंड रियल वे। तो इसको रियलिटी के साथ जोड़ो, और आपको ये सब बार बार नहीं कहना पड़ना चाहिए। बाकी क्लासों का समझ आता भी है, आप तो सीनियर मोस्ट क्लास हो बेटा। कई छोटे बच्चे देते हैं मैं उन बड़े होकर उन दीदी की तरह बनूंगा, आपको आइडलाइज करते होंगे कई, एंड दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। आपको जचता नहीं है, मैं नहीं आपको छोटे बच्चों की तरह बार बार समझाऊंगा। बट स्टॉक एंड फ्लो बोथ आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, बट द डिफरेंस इज स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, एक स्थिर वैल्यू, and flow is a continuity, the value which is keep on changing because it is an ongoing thing which goes on and on and on. तो उसकी वैल्यू तो एक टाइम पे एकदम कैसे बता सकते हो आप, वही डिफरेंस है। मैंने आपको पानी की टंकी और टैप वाटर का एग्जांपल भी दिया था। तो स्टॉक इज अ वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें टाइम फैक्टर का कोई लोचा ही नहीं है, यू कैन मेजर दैट वैल्यू और वेरिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट फ्लो वो वेरिएबल या वो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए एक टाइम की अवधि चाहिए, यू नीड अ पीरियड। वो पीरियड 1 घंटा भी हो सकता है, 1 वीक, 1 डे, 1 ईयर, 10 डेज, सेंचुरी, कितने भी हो सकते हैं टाइम पीरियड। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है स्टॉक एंड फ्लो का। फिर हमने टच किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर जो आप थ्योरीज या कुछ पढ़ोगे तो उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। क्लासिकल मॉडल है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, मार्शल जैसे, पियोगो जैसे, जेएस मिल्स जैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं। क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देखो, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो पढ़ते हैं ना एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसने टाइम के क्रोनोलॉजी पे उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री को। वैसे ही इकोनॉमिक्स को जब आप पढ़ते हो, चाहे माइक्रो की पढ़ रहे हो या चाहे मैक्रो पढ़ रहे हो, उसको जब हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमिस्ट के बेसिस पे, तो 3 आते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने, जब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ होगा, देखो आपका दूसरा ईयर है और आप जो है डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अपियर होने जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए ना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आज से 1000 साल पहले तो नहीं रहा होगा, शायद 1000 साल रहा हो किसी जगह पे, उसका मेंशन हो सकता है। जैसे कौटिल्य वगैरह थे विक्रमादित्य के टाइम पे, तो उन्होंने अर्थशास्त्र का मेंशन है वहाँ पे, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो है, बट बाकी मेरे को नहीं पता। और उसका लॉजिक भी है, जब हर चीज वॉज इन अबंडेंस, जब लैंड अबंडेंट थी, रिसोर्सेज अबंडेंट थे, पीपल वर लेस, तो उस टाइम पे तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। हमें तो इकोनॉमाइज करने की, रैशनलाइज करने की या प्रायोरिटाइज करने की जरूरत ही नहीं थी पूरी दुनिया में। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम और एवोल्यूशन के साथ साथ पॉपुलेशन बड़ी होगी, लोग बड़े होंगे, और रिसोर्सेज जो हैं कंपैरेटिवली स्केर्स, कम पड़ने शुरू, तभी ना जरूरत महसूस हुई होगी इस तरह के कुछ स्टडी करने के लिए, तब एवोल्यूशन हुआ है इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट का। तो उस दौर में जब जो स्टार्टिंग में कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जो थ्योरीज डेवलप हुई हैं, वो हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनमें चेंजेस आई, सोसाइटी में चेंजेस आई, मार्केट में चेंजेस आई,
उनके ऊपर जो टाइम थ्योरीज डेवलप हुई हैं वो नहीं हो क्लासिकल टाइम, और सभी अपने अपने टाइम पे ठीक हैं। इसमें सभी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बट वो लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि आज से 700 साल पहले मार्केट्स कुछ और तरह की रही होंगी, फिर 100 साल पहले कुछ और तरह की रही होंगी, आज मार्केट्स कुछ और तरह की हैं, तो वो टाइम अलग है, कंडीशंस अलग हैं, तो वो वेरी भी करती होंगी। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आगे 18th 19th और 20th 19th और 20th और 21st सेंचुरी के जो है ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल मॉडल है, मॉडर्न मॉडल है। डिफरेंस क्या है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑलवेज बिलीव्ड इन अ फ्री और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, वेयर द फ्री मीन्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग में, प्राइस आउटपुट में गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं। प्राइस आउटपुट क्यों? आप इसको बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ जोड़ लो ना। आपको मैंने वैसे कराया था, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, एंड इट इज अ सर्कुलर थिंग। मतलब प्रोडक्शन होगी तो ही कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन होगी तो ही कैपिटल फॉर्मेशन होगी। और एक कॉमन सेंस है, आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये देखो, ये हमने उसमें सर्कुलर फ्लो किया था, तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो प्रोडक्शन ही तो एक्टिविटी हो रही है फर्स्ट फेज में, फैक्ट्री में सामान ही तो बनाया जा रहा है। मैं इस टॉपिक पे फिर से आ जाऊंगा, पर आप पहले देख लो, सबसे पहले प्रोडक्शन ही होगी, तभी तो उनको बदले में इनकम मिलेगी, और जब इनकम मिलेगी तो सेकंड स्टेज आती है कंजम्पशन, जब वो वापस स्पेंड कर देते हैं सामान खरीदने के लिए, तो कंजम्पशन हो रही है। कंजम्पशन होने पर फैक्ट्री वाले के पास प्रॉफिट के साथ पैसे आ गए, तो वो एक और प्लांट भी लगा सकता है, फिर और फैक्टर्स चाहिए, फिर और फैक्ट्री इनकम, फिर और कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने हमेशा ये बिलीव किया या एडवोकेट किया कि फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, एंड विच मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एट ऑल, विच ऑल्सो मीन्स कि गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंजम्पशन तो गवर्नमेंट थोड़ा ही कंज्यूमर है, बाकी तो हम लोग होते हैं कंज्यूमर्स। तो प्रोडक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन में गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी ना हो, ये बिलीव था क्लासिकल्स का, ठीक है। एंड दे बिलीव्ड कि जो भी अगर प्रॉब्लम आएगी कोई, वो अपने आप ही मार्केट के मैकेनिज्म से, डिमांड एंड सप्लाई की मदद से ही वो ठीक हो जाएगी, ऑटोमेटिक इक्वालिटी हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ये क्लासिकल्स का बिलीव था। लेकिन इसके बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन आ गया, पॉलिसीज जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी की, यूएसए 19th सेंचुरी में बहुत बम्बा बम उठा, बहुत इकोनॉमी इसकी अपवर्ड हो गई। देखो तभी से यूएस डॉलर चला हुआ है, तो आज दिन तक 21st सेंचुरी में है, इस टाइम हम 2020 है, और आज भी पैरिटी वैल्यू हम डॉलर के हिसाब से बनाते हैं। तो यूएसए इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, उसकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हुई कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का, मतलब पहले तो हमेशा प्राइस डाउन होता है तो प्रॉफिट डाउन होता है, प्रॉफिट डाउन होता है तो एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन डाउन होती है, प्रोडक्शन डाउन होती है तो एम्प्लॉयमेंट डाउन होता है, एम्प्लॉयमेंट डाउन होता है तो इनकम फर्दर डाउन होती है। देखो बेटा, इकोनॉमिक्स में ये चेन सीक्वेंस आपको सही समझ में आ गया ना, कि किसके कारण क्या हो रहा है, और जबकि सब लॉजिक है और कॉमन सेंस है, तो आपको कंक्लूजन भी ठीक मिलेगा। तो उसके कारण ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1929 में। उस टाइम पे कीन्स, लॉर्ड कीन्स, उसको लॉर्ड की डेजिग्नेशन दी थी क्वीन ने, तो लॉर्ड कीन्स ने अपने, इसकी बुक आई थी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड मनी, ऐसे कुछ करके उसका नाम है, बहुत फेमस बुक है वो, और उसकी रिसर्च भी बड़ी अच्छी है। ही एडवोकेटेड कि भाई फ्री मार्केट इकोनॉमी इज नॉट अ वायबल थिंग, क्योंकि उसी के कारण द ग्रेट डिप्रेशन, पता है आपको, द ग्रेट डीप ऑफ 1930s, यूरोप, यूएसए, लैटिन अमेरिका, ये जितने भी सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड नेशंस थे, इनमें मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल डाउन लेवल पर, बिल्कुल नीचे आ गया, जीरो हो गया। जब खर्चा ही नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी तो वो खरीदेंगे नहीं सामान, जब वो खरीदेंगे नहीं तो इंडस्ट्रीज और थोड़ी बनाएंगी, तो आउटपुट और घटेगी तो और बेरोजगारी होगी। तो दिस गोज स्पाइरल, थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये इस तरह का कंसेप्ट होता है। तो कीन्स ने इसको एडवोकेट किया था कॉन्सेप्ट को, कि नहीं, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, ताकि जो डिसइक्विलिब्रियम मार्केट में क्रिएट होता है उसको करेक्ट करने के लिए। जबकि क्लासिकल्स कहते हैं कि ऑटोमेटिक इक्वालिटी हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी, ठीक हो। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को ड्राइव करते हैं। फिर हमने किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सिंपल कॉन्सेप्ट था, यही रहा मेरे ख्याल से मॉडल, लेकिन मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ।
और मैंने आपका सिलेबस देखा था, आप में मैंने उस दिन आपको करा दिया 2 सेक्टर मॉडल भी, 3 सेक्टर मॉडल भी, 4 सेक्टर मॉडल भी। आपके सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर ही है बस। In your syllabus, the sectoral flow is limited to 2 sector model and 3 sector model. That's it. But हमने कर लिया था तो still will do it. देखो 2 सेक्टर में आता है, 4 ही तो सेक्टर होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये एक्सटर्नल सेक्टर। 4 ही सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर सेक्टोरल डिवीजन की जाए इकोनॉमी की तो देयर आर ओनली 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर, वॉट एवर यू मे कॉल इट, या मैन्युफैक्चर कुछ भी, प्रोडक्शन सेक्टर कह लो, एंड एक्सटर्नल और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. सो इन 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Now it is all beta common sense. Look, I am doing it all again just to make your idea clear. To start any business, first of all you need the primary factors of production. सबसे पहले आपको primary factors of production चाहिए, तो who will give it? Household will give it ना. तो household से factors of production जो कि हुए land, labor, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये जाएंगे. हाउस होल्ड सेक्टर विल गिव प्राइमरी फैक्टर्स टू सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इन रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल गिव फैक्टर इनकम्स टू देम, दैट इज रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ऐसे ही होगा ना. अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आ गया, they've got the income, so they produce goods and services, means manufacturing sector produce goods and services and household sector pays for their goods and services. Look, this is how it will go. Isn't it? ऐसा ही होगा ना. Household sector will provide factors of production or factor services to manufacturing sector. In return, manufacturing sector will give factor incomes in the form of rent, wage, interest and profit to them. फिर manufacturing sector will provide goods and services and household sector will pay for those goods and services. So this becomes circular flow of income. 2 sector model. लेकिन इसी टॉपिक में, within this topic there is another topic which examiner may ask, that is real flow and money flow. So it is very simple thing. इन्हीं 4 ही तो ट्रांजेक्शन हैं, ये देखो 1 2 3 4. इनमें से जिनमें पैसा फ्लो हो रहा है, मैं उनको डार्क कर देता हूं, आपको शायद थोड़ा समझ आ जाए. Look, these 2 dark lines are showing only the flow of money. एक सेक्टर जो है फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है, ये देखो हाउस होल्ड सेक्टर को मिल रही है फैक्टर इनकम, और बदले में वो खर्च कर दे रहा है, पेमेंट कर दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. तो ये आपका मनी फ्लो हो गया. और जो ऊपर वाली दोनों ट्रांजैक्शन है उसमें मनी के अलावा ट्रांजैक्शन हो रही है. एक केस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और दूसरे केस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस विल बिकम रियल फ्लो. वेयर द मनी इज फ्लोइंग विल बिकम अ मनी फ्लो. और ये हो क्या रहा है, ये सारा क्या हो रहा है, वही 3 प्राइमरी एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. अगर आप थोड़ा सा, इफ यू यूज योर ग्रे मैटर,
You can simply conceive this idea within no time. Look, सबसे पहले जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो पहली एक्टिविटी हो रही है ना यहाँ पे, प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिंग. गन्ने को चीनी में बदल रहे हैं, रुई को कपड़े में बदल रहे हैं, वो यही ना हो रहा है काम जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट जाके काम कर रहे हैं. तो प्रोडक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस, प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे. फिर जब वो उनको बदले में इनकम दे रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज आ गई आपकी. लेकिन हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलते हैं, आपको कंजम्पशन समझने के लिए. देखो, जब फैक्ट्रियां सामान बना के मार्केट में उतार रही हैं तो ये पे कर रहे हैं, तो ये कंजम्पशन नहीं हो रही है यहाँ पे. When they are buying good and paying for those goods, तो ये कंजम्पशन नहीं हो रही है. तो ये सेकंड स्टेज हो रही है, कंजम्पशन. कंजम्पशन करने पर फिर पैसा वापस मैन्युफैक्चरिंग से मैन्युफैक्चरर के पास चला गया, प्रोड्यूसर के पास, बट उसको प्रॉफिट के साथ पैसा मिला. मान लो उसने एक और प्लांट लगा दिया M1, उसने एक और प्लांट लगा दिया M1. अब उसको हाउस होल्ड सेक्टर से और फैक्टर्स चाहिए, बदले में और फैक्टर इनकम चाहिए मिलेगी, और गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे ये, एंड दे विल बाय. तो ये फिर ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी. तो ये जो स्टेज हो रही है जब वो एक और प्लांट लगा रहा है यहां पे, ये कैपिटल फॉर्मेशन. अब अगर इसमें ऐसा होता कि प्रोडक्शन तो होती लेकिन लोग अपने पैसा खर्चते ही ना, कंज्यूम ना करते, तो पैसा तो फिर हाउस होल्ड सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में ही रह जाना था. अगर सबको पैसा मिला, फैक्ट्री इनकम मिली काम करने के बदले, लेकिन वो अपना पैसा सारा का सारा अपने पास ही रखते और कंज्यूम ना करते हाउस होल्ड सेक्टर, तो बीच में कंजम्पशन मिसिंग होती, तो फिर तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं ना हो पाती. तो ये सर्कुलर फ्लो है, विच मीन्स इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और इसमें वही बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही प्रैक्टिस हो रही हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. वो तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि दो सेक्टर में इनकम या ट्रांजैक्शंस किस तरह से सर्कुलर फ्लो होती हैं, और उसी के बीच में से आपका मनी फ्लो एंड रियल फ्लो भी आ गया. अब इसमें तीसरा सेक्टर अगर ऐड करना हो तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मान लो ये है, तो इसका तो दो ही ट्रांजैक्शन होती है इनकी. ईदर यू डिपॉजिट योर मनी, दैट इज सेविंग्स, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है चाहे हाउस होल्ड सेक्टर है, दोनों ही अपनी सेविंग्स ही तो यहां जमा कराएंगे. दे विल डिपॉजिट देयर सेविंग्स, और जरूरत पड़ने पे दे कैन बोरो ऑल्सो. तो दो ही ट्रांजैक्शन, ज्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं इनके साथ यही ट्रांजैक्शन होती है. या तो आप डिपॉजिट कर रहे हो या तो आप बोरो कर रहे हो. इधर यू आर डिपॉजिट योर सेविंग्स या मनी विद द बैंक, और यू आर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक. तो यही दोनों ट्रांजैक्शन हमने शो करनी है. तो ये हो जाएगा आपका 3 सेक्टर मॉडल. अच्छा, इसी में एक टॉपिक आता है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस. लीक, अरे लीक होना, लीक्स, LEAK, लीक होना, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट. देखो, एक बात तो समझ लो कि मान लो इनकम है, इट विल बी इक्वल टू इसको कहते हैं ट्रिपल एंटिटी. मींस डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने वर्थ की प्रोडक्शन हो रही है, अभी तो हमने पढ़ा प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन,
कैपिटल फॉर्मेशन होती है इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू इनकम विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बिकॉज जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रही है उतने अमाउंट का फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इनकम भी उतनी होगी, और जितनी इनकम होगी और इफ द होल इनकम इज कंज्यूम्ड एक्सपेंडिचर्स बराबर होंगे। अगर हम सेविंग को भी एक्सपेंडिचर ही मान लें तब तो ऐसे ही हो गया ना कि प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू इनकम विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। दिस इज नोन एज ट्रिपल एंटिटी। फर्दर यू विल अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकली ऑल्सो, बट फॉर द बीइंग यू मे अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब इसमें दो सेक्टर का मॉडल पकड़ रहे हैं, हाउस होल्ड और मैन्युफैक्चरिंग का। मैं फिर से, चलो कोई नहीं, ऐसे ही समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको डिटेल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इधर से मान लो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और बदले में इफेक्टिव इनकम, इन्होंने किया गुड्स एंड सर्विसेज और इन्होंने किया पेमेंट। अब इसी में हो रही है ना हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तो समझाया आपको। मान लो ये पूरे सर्कल में प्रोडक्शन हो रही है 2000 रुपए की, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे, इफ प्रोडक्शन इन द होल सर्कल फ्लो द वैल्यू या वर्थ ऑफ प्रोडक्शन इज से 2000 rupees, so in this such case income will become 2000 rupees and expenditure will also become 2000 rupees, ठीक। लेकिन इसी दौरान हमारे देश में अमाउंट ऑफ गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग अवर जीडीपी। तो मान लो कि हमारे यहाँ पे अब वो प्रोडक्शन जो हो रही है वो 2000 की बजाय 2500 की हो रही है। तो क्या होगा, तो सर्कुलर फ्लो में अब एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। मतलब मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड, मोर फैक्टर इनकम विल बी गिवन, मोर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड मोर पेमेंट्स विल बी मेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि अब वो पूरा सर्कुलर फ्लो 2000 का रुपीज का वर्थ का नहीं रहा या 2000 करोड़ का नहीं रहा, अब वो 2500 करोड़ का हो गया। मीन्स देयर इज एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। दिस मीन्स इंजेक्शन। When the more money, more worth is put into a circular flow, that is called injection. लेकिन अगर ऐसा हो जाता देश में कोई अकाल पड़ गया या गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी आ गई या कोई और लफड़ा हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर्कुलर फ्लो, मान लो हो गया 2000 की बजाय 1500 का, तो उसका ये मतलब है ना अब प्रोडक्शन कम हो रही है, तो कम प्रोडक्शन हो रही है तो कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, बदले में कम इनकम मिल आएगी, सामान भी कम बनेगा, पेमेंट भी कम होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया थोड़ा सा सर्कुलर फ्लो। दैट विल बी कॉल्ड लीकेजेस। व्हेन वैल्यू या वर्थ इज फर्दर एनहांस्ड, उसमें बढ़ जाए या सर्कुलर फ्लो में एक्सपेंशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शंस। एंड व्हेन the value or worth of the circular flow is reduced or it is shrinked or contraction है उसमें, then it is called leakages. अच्छा, और क्या है इसमें? रियल फ्लो, मनी फ्लो हो गया, ये सब हो गया, स्टॉक एंड फ्लो भी हो गया। ऐसे बता देता हूं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम थोड़ा ही रह गया है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं फिर भी, क्योंकि जब पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आए ना तो वो टॉपिक ज्यादा अच्छा रहता है। देखो, दो सेक्टर तो आगे आपको समझ। तीसरा सेक्टर था बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ दो ही तरह का रिलेशन होता है। या तो जैसे हाउस होल्ड पकड़ लो, हाउस होल्ड या तो सेविंग डिपॉजिट कर रहा है या बोरो कर रहा है। सेम गोज विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या तो वो अपनी सेविंग्स जमा करा रहे हैं बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, या फिर उनसे बोरो कर रहे हैं। ये हो गया तीसरा सेक्टर। चौथा सेक्टर डालने से आ गई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो फोर्थ सेक्टर के साथ हाउस होल्ड का क्या रिलेशन होता है? हाउस होल्ड जो है अपना डायरेक्ट टैक्सेस, हम जो पे करते हैं, देयर आर नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स भी जिसको कहते हैं, पर्सनल टैक्स भी कहते हैं उसको, वी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, और इन रिटर्न गवर्नमेंट गिव्स अस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और उसके साथ
ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशंस, इस तरह की पेमेंट्स जो होती हैं वो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। तो वो गवर्नमेंट सेक्टर ही देता है ना हाउस होल्ड को। तो ये, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गवर्नमेंट को पे करता है कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स, और बदले में गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है सब्सिडीज। फिर ये भी एक लिख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है गुड्स एंड सर्विसेज भी बना के देता है गवर्नमेंट को। क्यों? गवर्नमेंट को अभी बिजली डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए, वायर्स चाहिए, वो इंडस्ट्रीज ही तो बना के देती हैं उसको सड़क बनाने के लिए वो जो चारकोल टाइप होता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, अरे जो ऊपर का टॉप लेयर होती है सड़क की, ब्लैक जो होती है, वो इंडस्ट्रीज ही तो बनाती हैं। तो हम ये भी एक ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट पेज फॉर देयर गुड्स। तो ये आ गया फोर्थ सेक्टर। एंड फाइनली देयर इज अ फिफ्थ सेक्टर, दैट इज अ विदेश वाला सेक्टर, अब्रॉड वाला, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको कह लो आप इसको। तो उसके साथ तो दो ही रिलेशन होते हैं, ईदर यू एक्सपोर्ट टू देम और यू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम देम। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही करता है, मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ईदर यू एक्सपोर्ट और यू इंपोर्ट। इसके तो दो ही ट्रांजैक्शंस हैं, लुक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप इंपोर्ट कर रहे हो। दैट्स ए सर्कुलर फ्लो फॉर यू। आई होप, क्योंकि मैं उस दिन का क्लास को भी थोड़ा टॉपिक्स को रिवाइज किया, तो जितना आपको किया है इतना समझ में आया है आई गेस। और इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू ओनली इफ यू रीड इट आउट वंस एटलीस्ट। जो आपने आज डिस्कस किया है इसको आप कहीं अगर एक रीडिंग मार लो, इफ यू जस्ट गो थ्रू इट वंस, बिकॉज थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया ही होगा, तो ये आपको दिस इंफॉर्मेशन विल गेट रीइंफोर्स्ड एंड यू वॉन्ट फॉरगेट इट वेरी इजीली। तो आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं बेटा, क्योंकि अगर क्लासेस में होते तो थोड़ा फोर्स भी कर सकते हैं, आप उसको फोर्स कह सकते हो, या थोड़ा पुश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि सर टीवी से थोड़ी निकल के अभी मोबाइल से थप्पड़ मारेंगे, तो आप उसको वैसा ले रहे हो, जबकि ये आपका नुकसान है। आर्यन तूने बेटा, मैंने तेरा पेपर चेक किया, सबका तो नहीं हो पाए, लेकिन मेरे को एक चीज समझ आई आर्यन बेटा, तूने पेपर खुद लिखा है, तूने देख के नहीं लिखा। आर्यन सच बोलना, या मेरे को ही कहीं टपला लग रहा है? हाँ, तूने पेपर खुद लिखा है पुत्र जी, तूने खुद लिखा है। बाकियों की तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं हुई है किसी की, मैंने जिनका चेक किया है। और इसको आप लोग के अचीवमेंट भी समझ रहे होंगे। नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही दे देता, तुम्हें नंबर मांग लेते, मैं ऐसे ही दे देता। 12th है बेटा, किसी इंडिया के किसी कोने से किसी ने पेपर डालना है आपका, एंड हमें नहीं पता किसने डालना है। वो बंगाली हो सकता है, तमिल हो सकता है, कन्नड़ा हो सकता है, राजस्थानी हो सकता है, क्या उसके दिमाग में आएगा, वो किस तरह का पेपर डालेगा, हम तो गेस कर सकते हैं। तो डालना भी किसी और ने है, देना भी हमने कहीं और जाके है। ये भी नहीं है कि तुम उस क्लासरूम में अपने स्कूल में पेपर दोगे, वो केस भी नहीं है। तो देना भी हमने कहीं और जाके है, फिर चेक भी किसी और ने करना है। जिसने चेक करना है वो क्या पता किन्हीं चीज़ों से उसका इन्फ्लुएंस है, उसके घर में ना कोई लड़ाई हुई हो, कहीं उसका मूड खराब ना हो। तो हमारा आंसर तो किसी भी केस में यूनिवर्सल होना चाहिए, कि ऐसा आंसर जिसमें कि चेकर, जो भी एग्जामिनर है जो चेक कर रहा होगा, उसका एक्सप्रेशन टिक वाला आना चाहिए, ना ही क्वेश्चन मार्क, ना ही एक्सक्लेमेशन साइन, ना ही वो अंडरलाइन करे, ना ही वो क्रॉस करे। तुम्हारा रिस्पॉन्स वैसा होना चाहिए, और उस रिस्पॉन्स को वैसा बनाने के लिए तो बेटा ये सारा कुछ कर रहे हैं हम। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, यू आर मिसिंग अ वेरी बिग थिंग। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप तो बहुत बड़ी गलती है, चूक कर रहे हो, और इसमें रिकवरी स्टेज आई नहीं है। इसलिए
यू आर ए सीनियर मोस्ट क्लास बेटा, सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स, सो बिहेव लाइक वन। आपको बचपना तो सूट ही नहीं करता। मेरे को आई सिंपली फेल टू अंडरस्टैंड कि आप जो कैमरा ऑन नहीं करते हैं बच्चे, आप इसमें से गेन क्या करते हो, क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन, एड्रेनलिन, क्या मिलता है, क्या गेन कर रहे हो? रादर आई गेस यू आर लूजिंग इट। नहीं बेटा, ये पढ़ाई झूठ मूठ की थोड़ी हो रही है। हम सिलेबस भी रियल में कर रहे हैं, रियल टाइम में ही कर रहे हैं। सिर्फ लिमिटेशन ये है कि हम क्लास में नहीं है, आमने सामने नहीं है, वैसे इन पर्सन नहीं है, इतना ही डिफरेंस है ना। आप इसको गलत ले रहे हो बेटा, मत करो ऐसा। अभी भी आपके पास 2-3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फेब में तुम्हारा तो बहुत नाटक है। फेब में तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल्स आएंगे, कोई इंटरनल एक्सटर्नल, बहुत नाटक हो जाना है उसमें, और वर्कलोड इतना पड़ जाना है तुम्हें सबके प्रैक्टिकल्स बनाने, अरे बहुत कुछ हो जाना है। मैं किस लिए अभी तुम्हें पहले डरा दूँ? तो आप अभी से क्यों ना थोड़ा 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 प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए। तो स्टिल देयर इज अ टाइम टू गेट योर बेयरिंग्स वेरी स्ट्रेट एंड थोड़ा फोकस करो यार, थोड़ा फोकस करो। अरे और अगले साल इस टाइम पे कॉलेज में घूम रहे होंगे, किसी ने पूछना भी नहीं है कि क्लास में आओ या नहीं आओ, कोई भी नहीं पूछेगा, कोई पुश नहीं करेगा आपको किसी भी स्टेट में, किसी भी कॉलेज में जाने से। पर बेटा उसके लिए उतना तैयार तो हो जाओ कि कॉलेज के कंपैटिबल तो हो तुम। ऐसा नहीं ना हो कि कॉलेज में ही थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हो तुम। चलो इसको एक रीडिंग मारना, फिर देन वील मूव, आगे चलेंगे कल, वील मूव अहेड। इन टॉपिक्स को नजर मारना एक सभी, ठीक है? चलिए बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।